السلام علیکم لسنرس، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج یہاں پر بادل بنے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا میں اتنے اچھے موسم میں آپ لوگوں کے لیے ہارر سٹوریز ریکارڈ کرتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں جو ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ جو پہلی ہارر سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ علی یاسر نے شیئر کی ہے جرمنی سے۔ یاسر کہتے ہیں کہ میرا تعلق ہزارہ برادری سے ہے، کوئٹہ کا میں رہائشی ہوں۔ 2010 میں ہم لوگوں کی برادری کے، فیملی کے بہت سے لوگ، میرے بہت سے دوست آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ کافی عرصے سے کوئٹہ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے، مائیگریشن کر کے فارن کنٹریز میں جا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں سے ضد کی، تو میرے گھر والوں نے بھی میری ضد کو مان کر مجھے باہر جانے کے لیے، فارن کنٹری جانے کے لیے کہہ دیا کہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ میں اور میرا کزن رضوان اور میرا ایک دوست حسنین، ہم تینوں نے جانا تھا۔ ہم لوگ پہلے ایران گئے، ایران سے ہم لوگوں نے پھر جانا تھا فارن کنٹریز میں۔ جب ہم لوگ ایران گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کی وہاں پر سنگ مرمر کے جو پتھر ہوتا ہے ایک، اس کی فیکٹری تھی، اور وہاں پر باقاعدہ ان کا ایک حصہ تھا جہاں پر وہ سارے سٹون کی کٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی ایک لڑکا تھا، اس کا نام علی تھا، اس کو بھی انٹرسٹ تھا کہ وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی باہر جائے گا۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دن تم لوگ میرے پاس سٹے کر لو، میں نے یہاں پر اپنے کچھ ڈیوز کلیئر کرنے ہیں، اس کے بعد ہم چاروں مل کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں کی رہائش اسی فیکٹری والی جگہ پر ان لوگوں نے کروائی۔ ہم لوگ وہاں پر رہنے کے لیے فیکٹری میں چلے گئے۔ جس ایریے سے گزر کر ہم لوگ فیکٹری میں جا رہے تھے وہ بہت ہی ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ وہاں پر دن کے ٹائم بھی بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ایران کا وہ علاقہ تھا، بہت ہی سنسان وہ ایریا تھا۔ ہم تینوں لڑکے وہاں پر علی کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر اس فیکٹری میں 4 سے 5 ایسے رومز تھے جہاں پر فیکٹری کے کچھ ورکرز بھی رہا کرتے تھے۔ وہ علی بھی وہیں پر رہتا تھا اور ہم لوگوں کا سٹے بھی اس کے پاس ہی تھا۔ ہم لوگ کافی تھکے ہوئے تھے، کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ جیسے ہی میں سویا، مجھے شاید نئی جگہ تھی یا تھکاوٹ تھی، مجھے بہت زیادہ ڈراؤنا خواب آیا اور میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں مجھے اتنے ڈراؤنے خواب کیوں آ رہے ہیں۔ میں آدھی رات تک تقریباً جاگتا رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں بھی نئی جگہ ہے، اس وجہ سے میری یہ کنڈیشن ہو رہی ہو۔ اگلے دن بھی سارا دن ہم لوگ وہیں پر رہے، فیکٹری کے لوگ وہاں پر کام کاج کرتے رہے۔ وہاں پر 2 لیبر ایسے تھے، 2 مزدور ایسے تھے، ان کا بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ ایب نارمل تھا۔ وہ بالکل نارمل بیہیو نہیں کر رہے تھے، گمسم سے، چپ چپ سے، اور اگر کبھی بات بھی کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ان میں کیا پرسرارت سی تھی۔ میں نے علی سے پوچھا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں ان کو کیا پرابلم ہے، یہ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ تو اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، بلکہ یہی کہا کہ ان کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ ہے ہی ایسے۔ پھر رات ہوگی حسب معمول، ہم لوگ ایک روم میں ہی تھے، اس روم میں اور بھی لوگ تھے، 4 سے 5 اور بھی لڑکے تھے، کافی بڑا وہ روم تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کا سونے کا اس نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ ہم تینوں دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، علی بھی سو گیا تھا اور باقی سب لوگ بھی سو رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہم لوگوں کو باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے
उस रूम का कोई दरवाज़ा खोलकर हमें झांक कर देखता है। 2 से 3 दफ़ा हम लोगों ने ये फील किया कि उस कमरे का दरवाज़ा कोई खोलता है और जिस तरह से झांक कर कोई देखकर फिर बंद कर देता है। हम तीनों ने ये बात एक दूसरे के साथ शेयर की। फिर हम लोगों को ये लगा कि शायद कोई वर्कर हो। इस चीज़ को भी महज अपना एक वहम कहकर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया और हम लोगों ने यही कहा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग सोते हैं। हम लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए। तकरीबन अभी हमें सोए हुए घंटा ही हुआ होगा, एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ जिस तरह से मेरे सीने के ऊपर बहुत भारी कोई चीज़ आकर बैठी है। मैं चीखना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, मगर मुझसे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत वज़न था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने के ऊपर कोई चढ़कर बैठा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी मेरा कज़न रिजवान अभी सोया नहीं था। उसने जब देखा कि मैं हाथ पाँव इस तरह से हिला रहा हूँ तो उसने फ़ौरन वो मेरे पास आया और उसने मुझे हिलाया और ये पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। मैं बहुत खौफज़दा था, डरा हुआ था। मैंने उसे ये बताया कि जैसे ही मेरी आंख लगी है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सीने के ऊपर कोई चीज़ आकर बैठी है जो बहुत भारी थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं चीखना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में हसनैन भी जाग गया। वो दोनों मेरा मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने ये कहा कि तुम फजूल में ही डरते रहते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। वो दोबारा अपने अपने बिस्तर में लेट गए, मैं भी अपने बिस्तर में लेट गया, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं आंखें खोल कर इधर उधर देख रहा था कि मैं भी मुझे कोई नज़र आ जाए। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे थे, मेरी नज़र पड़ी तो जो मेरा कज़न रिजवान था वो भी इस तरह से हाथ पांव हिला रहा था जिस तरह से सेम मेरी कंडीशन थी। मैं फ़ौरन भागता हुआ उसके पास गया। मैंने उसको हिलाया, जगाया और पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कांप रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उसने मुझे ये कहा कि जैसे ही मैं लेटा हूँ मैंने आंखें बंद की, 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे हलक में कोई चीज़ बाकायदा गई है और जिस तरह से उसने मेरा हलक पकड़ लिया है। मैं चाहकर भी नहीं चीख पा रहा था। हम दोनों की आवाज़ें सुनकर हसनैन भी जाग गया और उसने ये कहा कि तुम लोग ये क्या ड्रामे कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तुम लोगों को फजूल में ही डर लग रहा है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ होती तो बाकी लोग क्यों आराम से सोते। लेकिन हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा उस टाइम ख़राब थी और हम लोगों को ये आइडिया हो चुका था कि 1 बाय 1 जिस तरह से हम लोगों को अटैक किया है किसी भी मखलूक ने, हो सकता है हसनैन पर भी वो मखलूक अटैक करे। वो भी अपने बिस्तर में लेट गया और हम भी। तकरीबन थोड़ी देर के बाद हम लोग हसनैन की तरफ ही देख रहे थे। वो बिल्कुल हम लोगों के सामने लेटा हुआ था, एक दीवार के साथ उसका बिस्तर था। हम लोग वाज़िया देख रहे थे, हम लोगों के सामने हसनैन को किसी चीज़ ने इतनी ज़ोर से पटका कि उसका सर दीवार में जाकर लगा। जब हम लोगों ने उसको इस तरह से देखा, हम लोग भागते हुए उसके पास गए तो उसकी हालत हम लोगों से भी ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा डरा और घबराया हुआ था। हम तीनों जाग कर बैठ गए। हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हो रहा था कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है। 1 बाय 1 हम तीनों के ऊपर उस गैर मरे मखलूक का अटैक हो रहा था। बहुत ज़्यादा हम लोग खौफज़दा थे। सब लड़के उस रूम के सो रहे थे। हमने आराम से अली को जगाया और अली को ये बात बताई। अली पहले हम लोगों की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसने हमें ये कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग नई जगह की वजह से डर गए होगे। हमने उसे ये कहा कि हम लोगों ने वॉशरूम में जाना है, जिस पर अली का ये कहना था कि मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, ऐसा ना हो कि तुम लोग डर जाओ। अली हम लोगों को लेकर वॉशरूम की तरफ गया। वो जो वॉशरूम्स थे वो उन रूम से बिल्कुल हट कर थे, काफ़ी दूर वो वॉशरूम थे। अभी हम लोग वॉशरूम के पास ही पहुँचे थे, एकदम से एक वॉशरूम की टैब ऑन हो गई। उसका जो अंदर नलका होता है वो चलने लग गया, जैसे उसकी टैब किसी ने खोली है। अली एकदम अंदर गया और वो टैब बंद करके बाहर आ गया और उसने ये कहा कि यहाँ की एक वॉशरूम की टैब ख़राब है तो वो अक्सर अपने आप चल जाती है। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोगों ने हम लोग वॉशरूम से फ्री होकर हम लोग जैसे ही वापस पलटे, उसी वॉशरूम की टैप
फिर चल गई और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका दरवाज़ा भी बंद हुआ है। जैसे ही अली ने पीछे पलट कर देखा, वो टैप बंद हो गई। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो फिर जाकर अपने बिस्तर में सो गया और हम लोग खौफ के मारे सारी रात हम लोगों ने जाग कर गुजारी, क्योंकि इतना बड़ा हम लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। अपनी जगह पर हर कोई खौफज़दा था। सुबह हुई तो अली ने जब देखा कि हम लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम अभी तक स्टिल उसी चीज़ में है, उसी खौफ में है, तो उसने हम लोगों के लिए एक गाड़ी मंगवाई और हमें तेहरान भेज दिया। वहाँ पर उसका एक दोस्त था, उसके पास उसने हमें भेज दिया और 1-2 दिन के बाद वो खुद भी वहाँ पर आ गया अपने सब ड्यूज़ क्लियर करके। जब वो वहाँ पर आया तो फिर उसने हमें बताया कि मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता था। वो जो फैक्ट्री है वहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। कहा यह जाता है कि पुराने वक्तों में वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसके ऊपर वो फैक्ट्री तामीर हुई थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। वो जो 2 लेबर थे, जो 2 मज़दूर थे, उनकी कंडीशन भी इसी वजह से ख़राब हुई थी कि उनके ऊपर भी उन्हीं जिन्नात का बसेरा था। इसी वजह से वो हमेशा गुमसुम ही रहते हैं। वो नॉर्मल दोबारा अपनी लाइफ में नॉर्मल हो सके ही नहीं। फिर उसका ये बताना था कि हम लोगों पर उन्हीं गैर मरई मखलूक़ात ने, उन्हीं आसेब जिन्नात ने हमला किया था, क्योंकि वो वहाँ पर किसी भी नए इंसान की मौजूदगी को पसंद नहीं करते। शुरू में हम लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे मुकीम हो गए, 24 घंटे वहाँ पर काम करते थे, रहते थे। फिर हम लोगों के साथ वक्त के साथ साथ वो हादसे कम होने लग गए। लेकिन जब कोई वहाँ पर नया इंसान आता है तो वो जिन्नात उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं करते। फिर उसका ये भी बताना था कि उस वॉशरूम में जो टैप अपने आप चल जाती थी, वहाँ पर जिन्नात का बहुत सख्त बसेरा था। वो जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए जब भी वहाँ पर कोई जाता था, कभी उसका दरवाज़ा खोल देते थे या बंद करते थे और कभी उसकी टैप चला देते थे। जब हम लोगों ने ये सारी बातें सुनी, हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। अजीब सा एक खौफ दोबारा से हम लोगों के जहनों पर आ गया, जिस तरह से वो सब अभी की बात थी। उसके बाद फिर हम लोग सब जर्मनी चले गए। अली ऑस्ट्रेलिया चला गया, रिजवान और मैं जर्मनी में होते हैं और हसनैन फ्रांस में होता है। अभी जब हम चारों दोस्तों की आपस में बात होती है तो वो वक्त याद करके हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। लिसनर्स, ऐसा होता है कि पुराने वक्तों में बाज़-औक़ात ऐसी बहुत से प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कब्रिस्तान होते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए होते हैं कि वहाँ पर अगर कोई नया सेटअप शुरू किया जाए, वहाँ पर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बिल्डिंग किसी भी पर्पस के लिए बनाई जाए, तो वो जिन्नात अपना बसेरा वहाँ पर नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हम लोगों की लाइफ में हैं। ऐसे बहुत से स्कूल्स मोस्टली होते हैं जो ऐसे ग्राउंड्स में तामीर कर दिए जाते हैं जहाँ पर पुराने वक्तों में शायद कब्रिस्तान होते हों। हालांकि इंसानियत और इखलाकियात ये कहता है कि जहाँ पर कब्रिस्तान हो, जहाँ पर कब्रें हों, वहाँ पर कभी भी कोई घर, कोई इमारत तामीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर वहाँ पर वो जगह आसेब ज़दा हो तो फिर वो इंसानों को वहाँ पर आबाद नहीं होने देते। मैं उस स्कूल का नेम ऑन एयर नहीं कर सकती। एक ऐसे स्कूल को मैं भी जानती हूँ जहाँ पर पुराने दौर में कब्रिस्तान हुआ करता था, फिर उसके बाद वहाँ पर एक स्कूल बना दिया गया। वहाँ पर अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे हादसात और वाक़यात होते थे जो नॉर्मल नहीं थे। ख़ास तौर पर जिस तरफ उस स्कूल का हॉस्टल था, वहाँ पर तो आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ ऐसे हादसे होते थे कि रात के टाइम उन लोगों को भयानक आवाज़ें आती थी और उन हॉस्टल के ग्राउंड्स में भी वो किसी को चलता फिरता देखते थे। मैंने भी उस हॉस्टल को देखा हुआ था और उसकी जो सराउंडिंग की ज़मीन थी, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर दरख्त थे। हर तरफ वो इस तरह से ग्रीनरी और ग्रास था कि अजीब सा वहाँ पर एक पुरसरार सी वो जगह लगती थी। और उसकी जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा नरम थी, जैसे उसके ऊपर चलते थे तो वो अंदर की तरफ
धंसती हुई महसूस होती थी। तो फिर लड़कियां हम लोगों को बताती थी उस स्कूल की कि रात के टाइम हम लोगों को अक्सर चीखों की आवाज़ें आती हैं, और बाज़ औक़ात तो कुछ लड़कियों ने वहाँ पर रात के टाइम कुछ परछाइयाँ भी देखी थीं। मशहूर था उस स्कूल के बारे में भी कि वहाँ पर भी किसी दौर में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी बुशरा ने मेरे साथ शेयर की है। बुशरा कहती है कि मैं ईस्ट अफ्रीका की रिहायशी हूँ और वहीं पर मेरी पैदाइश हुई थी। वहाँ पर जोग्राफिकल अगर एरा से देखा जाए तो वहाँ पर समंदर के करीब ही वो एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ पर एक आइसलैंड था और वो बहुत तारीखी आइसलैंड था। वहाँ पर कहा यह जाता है कि उस दौर में सिंदबाद, जो कि एक बहुत फेमस करैक्टर है, वो भी वहाँ पर ट्रेडिंग किया करते थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स, ट्रेडिंग शिप्स वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी। वो कहती है कि हम लोगों की कंबाइन फैमिली थी और हम लोगों का घर उसी आइसलैंड पर था। हम लोगों का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम लोगों के चाचू की फैमिली, सब हम लोगों के ददिहाल वाले उसी एक घर में रहते थे और वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। जितना वो घर बड़ा था उसके सराउंडिंग का एरिया भी उतना ही बड़ा था। हम लोगों के लॉन थे, जो बैक साइड वाला लॉन था उसकी एक साइड पर इस तरह से दरख्त और वीरान जगह थी जिस तरह से कोई जंगल होता है। तो हम लोगों के घर वाले बड़े बुजुर्ग दादी अम्मा हम लोगों को मना करती थी कि उस साइड पर मत जाया करो। एक दफ़ा मैं, मेरी बहनें, मेरी कज़नें, हम सब दादी अम्मा के रूम में सो रही थी। वहाँ पर अमूमन गर्मी रहती है तो इस वजह से विंडोज़ खुली रखते हैं और कर्टन्स भी आगे नहीं करते। हम लोग सो रहे थे, रात का टाइम था, 1:30 बजे का टाइम था। तो मुझे, हम लोगों की जो एक विंडो थी, उस विंडो के पास एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त था। क्योंकि वहाँ पर जितने भी दरख्त हैं उनकी हाइट इतनी बड़ी होती है कि वो ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक भी जाते हैं। हम लोग सेकंड फ्लोर पर थे, दादी अम्मा के रूम में सो रहे थे। मेरी सिस्टर भी सो रही थी, मेरी कज़न्स भी सो रही थी। एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरफ नीम का दरख्त है उस विंडो की तरफ से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही है। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे और वो जो लोग आपस में बातें कर रहे थे वो वहीं की, जो लोगों की बेसिक लैंग्वेज है, उनके इलाके की, उस एरिया की जो लैंग्वेज है उसमें वो बातें कर रहे थे। मगर चाह कर भी मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मैं फ़ौरन से उठी और मैंने ये कहा कि मैं झांक कर देखती हूँ बाहर कौन है। जब मैंने झांक कर देखा तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े बातें कर रहे हैं। फिर मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि इतनी रात को लोग वहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पर थे और उस नीम के दरख्त से मैं देख सकती थी, सामने सड़क थी और वहाँ पर कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। मैं फिर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर के बाद वो बातें आना बंद हो गई। वो जो बातों की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने इस चीज़ को नॉर्मल कर दिया। इस बात को 1 साल गुजर गया। उसके बाद मुझे और मेरी सिस्टर को एक अलग रूम दे दिया गया। हम दोनों एक ही रूम में थी। मेरी सिस्टर सो जाती थी, मैं हाई स्कूल्स में थी और अपनी स्टडीज़ लेट नाइट तक करती रहती थी। मैं उसी रूम में थी और सेम उसी जो नीम का दरख्त था जहाँ पर, उस तरफ की विंडो के पास बैठकर ही मैं पढ़ रही थी। उस दिन हम लोगों ने कर्टन आगे नहीं किए थे, नहीं तो रात के टाइम हम विंडोज़ के आगे कर्टन्स कर दिया करते थे। हो सकता है लापरवाही में हम लोगों को याद ना रहा हो। अभी मैं पढ़ ही रही थी, 12 बजे का टाइम था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ जिस तरह से नीम के दरख्त के पास से मेरा किसी ने नेम कॉल किया है। जब मैंने वाज़िया सुना कि मेरा किसी ने नेम लिया है, मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा है, बुलाया है, तो मैं एकदम से चौंकी और यहाँ तक कि मैंने उस बुलावे पर रिप्लाई भी किया। एकदम से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई और मैंने पीछे पलट कर जब देखा तो मेरी सिस्टर सो रही थी। फिर इतनी रात को मेरा नाम कौन लेकर बुला रहा था, ये चीज़ मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी। मैंने हिम्मत की,
उठ और मैंने फ़ौरन से वो विंडो बंद की और आगे कर्टन कर दिए। मैं कुछ खौफज़दा हो गई थी। सुबह ये बात उठकर मैंने अपनी अम्मी से भी शेयर की, तो वो भी परेशान हो गई और उन्होंने यही कहा कि तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं है ऐसा। उससे अगले दिन एज़ यूजुअल मैं फिर स्टडीज़ कर रही थी, उसी रूम में सेम जगह पर मैंने स्टडीज़ की। रात के 12:30 बजे का टाइम था। मैंने बुक्स बंद की और मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे आंखें बंद किए हुए। मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे बाहर बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, उसी नीम के दरख्त की तरफ से। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों की उस साइड पर बिल्कुल जंगल का एरिया है, वहाँ पर बहुत वीरान जगह है, तो वहाँ पर अक्सर जंगली बिल्लियाँ होती हैं। यहाँ तक कि हमने वहाँ पर बहुत से मंकी भी देखे हैं। बचपन से हम लोग ये सब चीज़ें देखते आ रहे थे। मुझे यही फील हुआ कि बिल्ली हो सकती है, मगर उसकी आवाज़ बहुत अजीब और भयानक सी लग रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं उठकर देखती हूँ कि वहाँ पर है कौन। जैसे ही मैंने विंडो खोलकर बाहर देखना चाहा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। नीम के दरख्त के पास एक सफ़ेद कलर की कोई जिस्म सा मुझे महसूस हुआ। फिर मुझे यही लगा कि हो सकता है लाइट्स जल रही हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हो जो वहाँ पर मुझे फील हो रहा है। मैं इधर उधर झांकने लगी कि मुझे बिल्ली नज़र आए। बिल्ली के बोलने और गुर्राने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, मगर वहाँ पर बिल्ली कहीं भी नहीं थी। मुझे यही लगा कि जंगली बिल्लियाँ होंगी, बोल रही होंगी, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर थी, पास से आ रही थी, नज़र कोई नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही पलटने लगी, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि उस नीम के दरख्त के पास कोई खड़ा है और वो बिल्कुल चलता हुआ सामने आ रहा है। जब वो चीज़ सामने आई, उसका सफ़ेद कलर का जिस्म था और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये कहा जा सकता है कि उसका जो जिस्म था, जो उसका एक स्ट्रक्चर मुझे फील हो रहा था, वो एक बकरे के साइज़ का था, मगर आवाज़ वो बिल्ली की निकाल रही थी। मैंने अपनी आंखों से उस मखलूक को अपने सामने देखा। वो नीम के दरख्त के पास खड़ी थी, जिसकी हाइट बकरे जितनी थी, और वो बिल्ली की आवाज़ निकाल रही थी। जब मैंने इतनी बड़ी चीज़ को देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने विंडो बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह मैंने ये बात अपनी अम्मी के साथ शेयर की। उस घर में हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर का सराउंडिंग का एरिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और वीरान था, ख़ास तौर पर वो हिस्सा जो जंगल वाली साइड पर था। हमारे उस घर में हम लोगों की फैमिली में बहुत झगड़े भी रहा करते थे। चाचू की फैमिली में भी हम लोगों के साथ, हम सबके उस घर में हम लोगों को कभी भी सुकून महसूस नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने एक वक्त पर आकर उस घर को छोड़ दिया। ये बुशरा की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लिसनर्स, कमेंट बॉक्स में मेरे एक लिसनर ने पूछा था कि हम लोगों के घर में भी एक पीपल का दरख्त है, आप कैसे कहती हैं कि हर पीपल के दरख्त पर सेब होते हैं? तो मेरा उन सब लिसनर्स को ये कहना है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि हर पीपल का दरख्त, हर बरगद का दरख्त, हर नीम का दरख्त, हर चमेली का फूल हॉन्टेड है। मैंने मोस्टली की बात की थी। मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं, दरख्त होते हैं, क्योंकि बरगद का एक दरख्त ऐसा दरख्त है जो बहुत कदीम होता है। कहा यह जाता है कि बरगद के दरख्त 100 साल तक भी नहीं गिरते, खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो स्किन और उनकी जो शाखें होती हैं वो भी ये एहसास दिला रही होती हैं कि वो कितनी कदीम और पुरानी है। उनकी इस इतने लंबे उनकी जो लाइफ होती है, उस वजह से वहाँ पर कभी कभार गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा होता है। और कुछ इस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट वो हजरात करते हैं जो जादू टूने करते हैं, जो काले जादू के ज़रिए ऐसे काम करते हैं जो इन दरख्तों के साथ वो लोग आकर करते हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा किसी दरख्त के ऊपर कोई ऐसा वीरान दरख्त होता है, कभी इस दरख्त के ऊपर कुछ बांधा होता है, तो कभी किसी दरख्त के ऊपर कुछ लटकाया होता है। उन जगहों को भी, उन दरख्तों को भी ज़्यादा हॉन्टेड इंसान खुद बनाते हैं। वो लोग जो ऐसे शैतानी अमलियात करके गैर मरे मखलूक़ात को दावत देते हैं कि वो अपनी जगह वहाँ पर बनाएं। और फिर जब इंसान उन दरख्तों के पास से गुजरते हैं
تو وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ میرے بہت سے لسنرز مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 2 سٹوریز اپلوڈ کیا کریں۔ یہ تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا ہے میرے لیے، کیونکہ دیوان خاص پر بھی میں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے اس لیے، اور یہاں پر میں یہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے یہ جو سٹوری کا ڈیوریشن ہے اس کو تھوڑا لینتھی کر دوں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کرتے رہا کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID پر کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔